Dear students, in this video lecture, we will be discussing an application of Cauchy's general principle, and the application is we have a sequence an of the form 1 plus 1 by 2 square 1 by 3 square and so on up till 1 by n square for every n in a set of natural numbers. So we are given the nth term of the sequences, the nth term of the sequence an. So अगर हमें सीक्वेंस की nth टर्म नोन है तो nth टर्म की हेल्प से हमें इसका मतलब ये होगा कि सीक्वेंस की हर एक टर्म का पता है हमें a1 a2 a3 we can find out from this nth term easily. So we need to prove that this sequence an is, we need to prove this is convergent sequence of real numbers by Cauchy's general principle. So using Cauchy's general principle of convergence, we need to show, or we need to prove that this sequence an is convergent. In order to prove that this is convergent, we need to prove that this is Cauchy. This is Cauchy sequence. Once we prove that this sequence an is Cauchy sequence, then we can apply Cauchy's general principle of convergence, and which in turn will provide us that this sequence an is convergent sequence. Once we prove that this an is Cauchy sequence. So what is the definition of a Cauchy sequence? When do we say a sequence is Cauchy? A sequence is Cauchy if for given epsilon greater than 0, if we can find a positive integer k which depends on this given epsilon. Okay, if we can find a positive integer k for a corresponding to this given epsilon, this depends on given epsilon, right? Such that modulus of an minus am, this modulus, this difference is less than epsilon for all n and m both are greater than or equal to this positive integer k, right? Now n and m both are greater than or equal to k, so we need to find a positive integer k, this positive integer k, right? अब n और m इन दोनों के बीच में जाहिर सी बात है कोई ना कोई रिलेशन होगा, either n is greater than m or n is less than m, right? इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन जरूर होगा, या तो n m से बड़ा होगा या तो n m से छोटा होगा. तो विदाउट लॉस ऑफ generality, assume that this n is greater than m. You can assume n is less than m, right? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस क्वेश्चन की जनरलाइजेशन पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा. ऐसा जरूरी नहीं कि n हमेशा m से बड़ा हो, n m से छोटा भी हो सकता है. आप उसकी हेल्प, आप n लेस देन m की हेल्प से भी इस
क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. सो आई एम टेकिंग n is greater than m. So n is greater than m, so m will be here and n will be here, some n will be here, say. So in between there will be m plus 1, m plus 2 and so on up to n terms, right? ये m और n के बीच में यही नेचुरल नंबर्स होंगे. कहाँ तक? m plus 1, m plus 2 एंड यहाँ n से जस्ट ठीक पहले कौन सा नंबर होगा? n minus 1, right? Now consider this difference, or you can take an minus am. So an will be, because n is, we have taken n is greater than m, so an will be 1 plus 1 by 2 square. So it will start from here 1 to, so 1 to 1 to n. So this is 1 by m square plus 1 by m plus 1 whole square up till, so this will be our an. This will be our an, right? ये हमारे पास an हो जाएगा. फिर माइनस am क्या होगा हमारे पास? am हो जाएगा हमारे पास, this will be our an. am हो जाएगा हमारे पास 1 plus 1 by 2 square up till यहाँ से यहाँ तक, 1 से लेके m तक am हो जाएगा हमारे पास 1m square this. So just apply brackets here. Now we can cancel these terms, 1 by 2 square, 1 up till 1 by m square. ये terms सारी की सारी cancel हो जाएंगी because of opposite signs and both have same value. So we will be left with 1 by m plus 1 whole square, 1 by m plus 2 whole square up till 1 by n square. And we know that n and m both are natural numbers, तो ये सारी की सारी terms क्या होंगी? Positive terms होंगी. So there is no need to put a modulus here, ठीक है? तो and we know that modulus of x is always x if x is always greater than equal to 0. तो ये सारी की सारी terms positive है, तो mod लगाने से कोई फायदा नहीं होगा. So we can write this is m plus 1 whole square, m plus 2 whole square up till 1 by n square, right? So mark it as equation 1. Mark it as equation 1. Now see, m plus 1 is always greater than, strictly greater than m, right? m plus 2 previous term से हमेशा बड़ा होगा. previous term क्या होगी? m plus 1. m plus 3 अपनी previous term m plus 2 से strictly greater होगा, and so on. n will be greater than the previous term n minus 1. अब इस इनइक्वालिटी को दोनों तरफ m plus 1 से मल्टीप्लाई करो. क्या मिलेगा हमें? व्हाट डू वी गेट हियर? दोनों तरफ m plus 1 से मल्टीप्लाई किया, बिकॉज m plus 1 इज पॉजिटिव, m इज पॉजिटिव नेचुरल नंबर, तो इनइक्वालिटी का साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई चेंज नहीं होगा. सो दिस इज m plus 1. अब इस वाली इनइक्वालिटी पे दोनों तरफ m plus 2 से मल्टीप्लाई करो. दोनों तरफ m plus 2 से मल्टीप्लाई किया, एंड सो ऑन. इस वाली टर्म को दोनों तरफ n से मल्टीप्लाई किया, सो n स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू n इंटू n माइनस 1. अब इसका रेसिप्रोकल लो. रेसिप्रोकल लेने पे हमें क्या मिलेगा? 1 स्क्वायर इज लेस देन, यहां से हमें मिलेगा 1 प्लस m m plus 1 into m plus 2.
और इस वाली इनइक्वालिटी से हमें मिलेगा 1/n² इज स्ट्रिक्टली लेस देन 1/n इंटू n-1। तो ये हमारे पास इनइक्वालिटीज आ गई। अब इन सारी इनइक्वालिटीज को आपस में ऐड कर दो। ऑन एडिंग दीज इनइक्वालिटीज, लेफ्ट हैंड साइड वाली टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड में ऐड करना है, राइट हैंड साइड वाली टर्म्स को, जो इनइक्वालिटीज के राइट हैंड साइड पे जो टर्म्स हैं उनको अलग से ऐड करना, सेपरेटली ऐड करना। तो हमें क्या मिलेगा, लेफ्ट हैंड साइड वाली टर्म्स को जब हम ऐड करेंगे सारी टर्म्स को एक साथ, तो हमें ये टर्म मिलेगी विच इज स्ट्रिक्टली लेस देन अप टिल n इंटू n-1। ठीक है, ये टर्म कौन सी हो गई, देखो फ्रॉम वन, दिस इज आर फ्रॉम वन, देखो वन पे क्या था हमारे पास, वन पे दिस इज आर वन, so this term is nothing but modulus of en minus am। तो ये वाला जो सम है, ये सम किसके बराबर आ रहा है, वन से, modulus of an minus am के इक्वल। so this sum is nothing but modulus of an minus am from 1। so this is less than equal to 1 by m into m plus 1 and so on up till n into, right? Now we will make use of a result here. We can write this term as ठीक है, अगर हम ये रिजल्ट यूज करेंगे, कौन सा वाला रिजल्ट, 1/ab कैन बी रिटन एज 1/a minus 1/b if if b minus, if b is greater than a, if b is greater than a and the difference between b and a is 1, and the difference between b and a is 1, then we can always write 1/ab as 1/ab as 1/ab as 1/a minus 1/b। ठीक है, if b and a are, if b is greater than a and their difference is 1, इसको सोल्व करो, सोल्व करने पे क्या मिलेगा, ab and b minus and b minus a is 1। सो हमने यहीं पे यूज किया है, यहाँ पे लो आप, टेक a to be m and b to be m plus 1, तो यही मिलेगा आपको। ठीक है, तो इस रिजल्ट को यूज, देखो अब सारी टर्म्स के बीच का डिफरेंस जो है वो 1 है, सो वी कैन राइट हियर तो इसको हम लिख सकते हैं, इस वाले रिजल्ट का मैं यूज करूंगा, तो हम लिख सकते हैं 1/m minus 1/m plus 1, यही मिलेगा। ठीक है, क्योंकि m plus 1 और m के बीच में डिफरेंस क्या है, 1। सिमिलरली अगली वाली टर्म में हमें क्या मिलेगा, m plus 1 minus m plus 2। अब इन दोनों टर्म्स के बीच में डिफरेंस क्या है, m plus 2 माइनस, देखो m plus 2 माइनस m plus 1 क्या मिलेगा, m से m कैंसिल हो जाएगा एंड यहाँ से हमें मिलेगा 2 minus 1 which is 1। तो ये सेटिस्फाई हो रही कंडीशन, b minus a is 1 and b क्या है यहाँ पे, b will be your m plus 2 and a will be your m plus 1। तो इस वाले में रिजल्ट का यहाँ पे यूज करूंगा एंड लास्ट में हमें मिलेगा 1/n minus 1 divided by 1/n, राइट।
तो अब ये सारी टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, ये दिस विल बी और दिस गेट्स कैंसिल आउट विद दिस टर्म, ये सारी सारी टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी. So we will be left with only 1 by m minus 1 by n. ठीक है. And this difference is always less than 1 by m. क्यों? क्योंकि हमने माना हुआ है, अज्यूम किया हुआ है कि let n is greater than m. तो then 1 by n strictly less हो जाएगा 1 by m से. यानी कि ये जो नंबर है 1 by n, ये 1 by m को कभी भी एक्सीड नहीं करेगा. तो एक्सीड नहीं करेगा इसका मतलब क्या है कि ये डिफरेंस हमेशा 1 by m से लेस ही आएगा. ठीक है. ये डिफरेंस जो है, जैसे आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, 5 इज ग्रेटर देन 2, 5 इज ग्रेटर देन 2, तो 1 by 5 विल बी स्ट्रिक्टली लेस देन 1 by 2. तो हम ये कह सकते हैं कि 1 by, वी कैन से 1 by 2, अगर 1 by 2 से हम 1 by 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जाहिर सी बात है ये जो डिफरेंस, क्योंकि 1 by 2 से कुछ कम हो रहा है क्वांटिटी, कुछ ना कुछ क्वांटिटी जो है वो लेस हो रही है, तो ऑब्वियस सी बात है वो क्वांटिटी 1 by 2 से लेस ही रहेगी, है ना. वो क्वांटिटी जो जो भी क्वांटिटी यहाँ से आएगी, क्योंकि 1 by 2 से तो कम ही आएगी वो क्वांटिटी, जो भी टर्म है 1 by 2 से लेस आएगी. ये 1 by 2 है. ठीक है. ये 1 by 5 है. अब आप 1 by 2 में से कुछ सब्ट्रैक्ट करोगे, कोई भी एक पॉजिटिव नंबर 1 by 2 से सब्ट्रैक्ट करोगे, वो नंबर यहाँ कहीं पे लाई करेगा, इससे आगे तो नंबर नहीं जाएगा. ठीक है. अगर 1 by 2 से आप कुछ भी पॉजिटिव क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट करोगे तो वो नंबर कहाँ पे लाई करेगा, ऑन द लेफ्ट ऑफ 1 by 2. दैट नंबर विल लाई ऑन द लेफ्ट ऑफ 1 by 2. ये जो रिजल्टिंग होगा, द रिजल्टिंग नंबर विल बी, ये जो होगा 1 by 2 माइनस, सो 1 by 2 माइनस 1 by 5 कहीं यहीं पे लाई करेगा. दिस इज स्ट्रिक्टली लेस देन 1 by 2, वही लिखा हमने मैंने यहाँ पे. सो दिस डिफरेंस लेस देन 1 by m. तो वी कैन से फ्रॉम 1 that modulus of a n minus a m is strictly less than 1 by m. अब ये नंबर गिवन एप्सिलॉन से लेस कब होगा, अब हम देखते हैं कि 1 by m जो है वो 1, ये नंबर एप्सिलॉन से लेस कब होगा, ये नंबर एप्सिलॉन से लेस कब होगा, मान लेते हैं हम कि 1 by m जो एप्सिलॉन से लेस है. तो इफ एंड ओनली इफ m इज ग्रेटर देन, तो ये दोनों स्टेटमेंट्स आपस में इक्विवेलेंट हुई, है ना. तो 1 by m जो है वो एप्सिलॉन से लेस कब होगा, जब m जो है वो 1 by एप्सिलॉन से बड़ा होगा. सो दिस इज स्ट्रिक्टली लेस देन एप्सिलॉन if and only if, or if m is greater than 1 by epsilon. चेक कर लो, बोथ आर इक्विवेलेंट. m को मैं इस तरफ ले गया, एप्सिलॉन को नीचे ले आया, तो बोथ आर इक्विवेलेंट. यहाँ से ये स्टेटमेंट मिल जाएगी, यहाँ से हमें ये मिल जाएगी, सो बोथ आर इक्विवेलेंट. सो 1 by m जो है वो एप्सिलॉन से लेस कब होगा, जब m जो है वो 1 by एप्सिलॉन से, जब m जो हो वो 1 by एप्सिलॉन से बड़ा हो. तो इसका मतलब है कि हमें नंबर क्या चूज करना पड़ेगा, पॉजिटिव नंबर ग्रेटर देन. तो लेट सबसे पहले let epsilon greater than 0 be any given positive, let be any given positive number, right. अब हम, क्योंकि अब हमें दिखाना है कि an is a Cauchy sequence, तो हमें एक नंबर चूज करना पड़ेगा. चूज अ पॉजिटिव इंटीजर k, चूज अ पॉजिटिव इंटीजर k सच दैट वो पॉजिटिव इंटीजर किससे बड़ा हो, वो पॉजिटिव इंटीजर बड़ा हो 1 by एप्सिलॉन से. देन देखो ये नंबर k जो है वो एप्सिलॉन पे डिपेंड कर गया, दिस नंबर k डिपेंड्स ऑन एप्सिलॉन. अगर आप यहाँ पे एप्सिलॉन 2 लेते हो तो ये k क्या चूज करना पड़ेगा हमें, k विल बी ग्रेटर देन 1 by 2. सो एनी k विच इज ग्रेटर देन 1 by 2 विल वर्क. ठीक है. अगर मैं एप्सिलॉन को चूज करता हूँ यहाँ पे, सपोज 1 by 2 चूज के लिए मैंने एप्सिलॉन, तो k क्या चूज करना पड़ेगा उस केस में, k विल बी ग्रेटर देन 1 by 2 which is 2. सो कोई भी k, any k which is greater than 2, यानी k can be 3, k can be 4. So any k which is greater than 2 will work. So
let epsilon greater than 0 be any given positive epsilon. So k हम चूज कर पा रहे हैं which is greater than epsilon 1 by epsilon, then modulus of an minus am will be, this will be 1 by m, right? और जब हम इसमें लेते हैं एप्सिलॉन चूज करने के लिए, तो कोसी सीक्वेंस हमें शो करना है। कोसी सीक्वेंस में हम क्या लेते हैं, लेट, कोसी सीक्वेंस में शो करने के लिए हम क्या करते हैं, लेट n and m both are greater than equal to this positive integer k, ठीक है? क्योंकि कोसी सीक्वेंस की डेफिनेशन यही कहती है कि ये जो डिफरेंस है ए एन माइनस ए एम, ये डिफरेंस एप्सिलॉन से लेस कब होगा, जब ये दोनों एन और एम गिवन पॉजिटिव इंटीजर के से ग्रेट, जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो कोरेस्पॉन्डिंग टू दिस ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि एन और एम जो है वो दोनों के दोनों के से बड़े हैं, तो दिस डिफरेंस इज, अगर m जो है वो k से बड़ा है तो m इज ग्रेटर देन इक्वल टू k, तो 1 by m इज लेस देन इक्वल टू 1 by k। अब यहां से देखो k क्या है, k इज ग्रेटर देन 1 by एप्सिलॉन, तो इसका मतलब ये हुआ कि एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 1 by k, यही मिलेगा यहां से हमें। तो 1 by k किससे लेस हो गया, 1 by k इज लेस देन एप्सिलॉन, तो n और m ग्रेटर देन इक्वल टू k है, तो यानी m ग्रेटर देन इक्वल टू k है, तो इसका मतलब 1 by m इज लेस देन एप्सिलॉन, तो हो गया प्रूफ। दिस इंप्लाइज एंड इट इज ट्रू फॉर एवरी पॉजिटिव, हर एक पॉजिटिव के कोरेस्पॉन्डिंग यू कैन चूज अ पॉजिटिव इंटीजर k which depends on this given epsilon। यहाँ पे जैसे जिस तरह से मैंने आपको यहाँ पे समझाया, इफ यू आर टेकिंग एप्सिलॉन टू बी 1 by 2, देन आपको k क्या चूज करना पड़ेगा, ग्रेटर देन 1 by एप्सिलॉन, greater than 1 by epsilon, and which is your 2, so any k which is greater than 2 will work for this sequence, ठीक है? तो let n and m both are greater than equal to k, then difference will be 1 by m, and m is greater than k, m क्या है, m is greater than equal to k, यहाँ पे मैंने आपको समझाया है m क्या है, m is greater than equal to k, m is greater than equal to k if and only if 1 by m is less than equal to 1 by k, और यहां से हमने k को क्या माना हुआ है, k इज ग्रेटर देन 1 बाई एप्सिलॉन, सो इसको इस तरफ ले आए तो एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 1 बाई k, so this implies sequence an is Cauchy sequence, so by Cauchy's general principle of convergence, every Cauchy sequence is convergent sequence, so this sequence is convergent sequence, right?